All right, guys. So we discussed about the blood glucose level in the last video, and right now I'm going to talk about the thermoregulation process, which actually occur in our body. Thermoregulation is a very unique homeostatic process, and you need to know about it in a particular detailed pattern. So I'm just going to discuss about how thermoregulation process occur in our body, especially in the mammal's body. Because when you're talking about, let's like have a look over here. Because when you're talking about thermoregulation, on behalf of thermoregulation, we have categorized the living organisms into two major classes. When you're talking about thermoregulation, what we have done, we have we have categorized the organisms into two. Beta one is those which we studied in our previous classes as cold-blooded animals. One are those which are like cold-blooded animal. अच्छा, अब कोल्ड ब्लडेड के लिए टर्म चेंज हो गया है. इनको कहा जाता है पोएकिलो थर्म. इनको ऐसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है. दोज आर कॉल्ड वार्म ब्लड. जैसे कि हम कहलाते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. हमें नाम दिया जाता है होमियोथर्म्स. Let's just be very specific about this. Let's just be very clear about this. You need to know both the terms. मैं इसमें और terms का इजाफा करता. Right now I'm not going into detail for these video series. मैं इसमें कहीं पर भी detail में नहीं जा रहा because I know इतना time नहीं है that we can move into the detail. Yes, obviously. अगर कोई भी सवाल आता है, you guys like please feel free to WhatsApp me, and you can even comment me your queries. I'll surely be answering those. When you're talking about poikilotherms, cold blooded animal है, बहुत आसान करके बताऊंगा. होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल है. इससे ज्यादा आसान इसमें कोई बात नहीं हो सकती. वार्म ब्लडेड वो जो कि अपने हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे. वो ये नहीं देखेंगे बाहर सर्दी है या गर्मी है. उन्होंने बोला कि हमें 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड या हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो यही चाहिए. फिर बाहर भले सर्दी हो या गर्मी हो. थोड़े जिद्दी हैं होम्योथर्म्स. पोइक्लोथर्म्स बेचारे मासूम, वो कहते हैं अच्छा बाहर सर्दी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम कर दो. वो कहते हैं अच्छा बाहर गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो. व्हाटएवर द टेम्परेचर इज आउटसाइड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे विल मूव अलोंग विद दैट. ओके तो यार अब मसला यहाँ पर यह आएगा कि अगर तुम्हें यही बात रखनी है सामने, तो तुम कहोगे कि सर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर रहा, दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट डूइंग homeostasis actually. So that's true. There is no thermoregulation in cold-blooded animals. The body temperature is equal to the external environment temperature. Their body temperature, their whose the homeotherms, their body temperature is never equal to external environment's temperature. They like poikilotherms require no thermoregulation. The homeotherms, they need. भाई सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, क्या करोगे? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करोगे. So they need thermoregulation. On behalf of thermoregulation, we have categorized the organisms into two major
categories. Okay, so now we are going to talk about that how do we regulate our body in different environments. We're going to talk about first what happens during warm temperature. We're going to talk about the warm temperature first. गर्मियों में क्या होगा? जब बाहर गर्मियां आ जाएंगी क्या होगा? When you're talking about warm temperature, आपकी बॉडी थर्मोजेनेसिस नहीं करेगी. लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर. आपकी बॉडी अपने आप को कूल रखने की कोशिश करेगी. इट विल नॉट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी, दिस इज फॉर यार, दिस इज फॉर ऑल द mammals, दिस इज फॉर ऑल द warm blooded organism. How they are going to respond? The response is very basic, very easy. During warm temperature they are going to vasodilate the vessels in their skin. वो अपनी स्किन की वेसल्स को वेजोडाइलेट कर दे. मैं आसान करूं बात को, ये वेसल का अगर डायमीटर है, लेट सपोज यार ये ब्लड वेसल थी, इसका डायमीटर था, उन्होंने इसको डायलेट कर दिया यानी कि बड़ा कर दिया. जब डायमीटर बड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो जा रहा था, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ यार यहाँ पर, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो जा रहा था वो फ्लो उस डायलेशन की वजह से स्लो हो जाएगा मूव करने में, लेकिन उसका अमाउंट बढ़ जाएगा. जब वो वहां स्किन के पास से ज्यादा ब्लड मूव करेगा तो वो अच्छा, और ट्रेवल भी स्लो कर रहा होगा, तेजी से नहीं भागेगा. जाहिर सी बात है, जगह है उसके पास, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, उसका स्पेस बढ़ गया, तो वो आराम आराम से चल के जाएगा. जब जगह कम थी, जब जगह तंग थी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन थी, तो वो स्लो स्लो मूव कर रहा था, वो ग्रेजुअली मूव कर रहा था. जब वेजो डायलेशन हुई तो वो आराम, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन थी तो वो तेज तेज मूव कर रहा था, जब वेजो डायलेशन होगी तो वो आराम से मूव करेगा, और इस आराम से मूव करने में वहां से हीट रेडिएट होगी बाहर. आसान हो गया. वेजो डायलेशन क्या करता है भाई, वेसल का साइज बड़ा हो गया, ब्लड आराम आराम से मूव कर रहा है, ब्लड ज्यादा मूव कर रहा है. ब्लड क्या कर रहा है मूव करके? ब्लड रेडिएट करेगा, ब्लड रेडिएट्स हीट. That is that much simple. And on the other hand, when you're talking about warm temperature, आपके स्वेट ग्लैंड, भाई गर्मी लगती है तो क्या आता है? पसीना आता है. आपके स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. वो जो वेजोडाइलेशन, जो पानी लेकर आ रहा था, जो उसमें प्लाज्मा था, जो उसमें फ्लूइड था, जो ब्लड लेकर आ रहा था, जिसमें पानी था, वो उस पानी से ही निकाल के स्वेट बना के बाहर एवेपोरेट कर देगा. तो आपके पास क्या होगा? ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिमूव हो जाएगी. इट रिमूव्स मोर हीट. और क्या करेगा? जब गर्मी लगेगी, इंसान क्या करता है, हम अपनी बॉडी में से रेस्पायरेशन के थ्रू भी हीट निकालते हैं. मतलब ब्रीदिंग के थ्रू, रेस्पायरेशन नहीं कहूंगा मैं उसे, हम ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू भी हीट निकालते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग प्रोसेस बढ़ा देंगे, और ब्रीदिंग प्रोसेस बढ़ेगा तो उससे भी ज्यादा हीट निकलेगी. आपकी स्किन में ये सारे के सारे काम आपका ब्रेन कंट्रोल करवा रहा होता है. आपकी बॉडी में सारे के सारे काम आपका ब्रेन कंट्रोल करवाता है. स्किन में एक वेरी लाइक देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड इरेक्टर पिलाई मसल. भाई पूछना आप जरा कि यार ये मसल कहाँ लगा हुआ है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, हेयर फॉलिकल कहलाता है. एक स्ट्रक्चर होता है, क्या कहलाता है? हेयर फॉलिकल कहलाता है. यहां से इससे अटैच, इसको हम अलग कलर से बनाते हैं. लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस थिंग ब्लू. यहां से ये मसल अटैच होता है. ये मसल क्या करेगा? ये मसल यहां से अटैच होगा. ये मसल क्या करेगा? ये इरेक्शन ऑफ हेयर करवा सकता है.
गर्मियों में क्या करेगा, गर्मियों में ये इरेक्शन ऑफ हेयर नहीं कराएगा। जब सर्दियां आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक लेयर ऑफ एयर, दोबारा से सुनो, लेयर ऑफ एयर ट्रैप हो जाती है, एंड दैट लेयर ऑफ एयर इज गोइंग टू ट्रैप टेम्परेचर, और टेम्परेचर ट्रैप हुआ हुआ खुद टेम्परेचर का ही इंसुलेटर बन जाएगा। वो हीट ट्रैप हुई, टेम्परेचर नहीं, एक्चुअली हीट ट्रैप हुई, खुद हीट का ही इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, erector pili muscle flattens the hair. Now I'm going to add one more last thing, that is during warm temperature we reduces body fat. हमारे पास बॉडी फैट स्किन में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, हम एडिपोज टिश्यू से फैट को रिड्यूस कर देंगे। जब गर्मी आएगी तो क्या करोगे, गर्मी आएगी तो वेजोडाइलेशन करोगे, जब गर्मी आएगी तो स्वेट प्रोड्यूस करोगे, ब्रीदिंग प्रोसेस बढ़ा दोगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस में से आप हीट रिमूव करोगे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, और इरेक्टर पिली मसल के थ्रू आप फ्लैटन कर देंगे बॉडी हेयर्स को, आप रिड्यूस करते हैं एडिपोज टिश्यू के फैट को, स्किन के फैट को, ताकि इंसुलेशन कम से कम हो जाए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट thermoregulation, you need to talk separately for cold temperature. When you are talking about cold temperature, जब आप कोल्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आपको और ज्यादा स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यार कोल्ड टेम्परेचर में आपके पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। On the other hand, you have got non shivering thermogenesis. ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ना बहुत थोड़ी सी बातें समझने के लिए, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो क्या होता है, हमारी बॉडी शेक करने लगती है, शिवर करने लगती है। होता क्या है यार, लेट्स सपोज यार ये तुम्हारे मसल सेल्स से, ये तुम्हारे क्या थे, ये तुम्हारे मसल सेल थे, सही है। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो यार, ये हमारे क्या है, दीज आर मसल सेल। जो हमारी बॉडी के मसल सेल्स हैं उनमें क्या होता है, दे हैव गॉट ग्लूकोज। तुम ग्लूकोज को तोड़ते हो ऑक्सीजन देके, तो वो बनाता है वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उसमें से रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और तुम उस हीट से क्या करते हो, तुम उस हीट से इसी की ही शिवरिंग करवा देते हो। जब तुम इसी की शिवरिंग करवा दोगे तो हमारी बॉडी जो है वो शिवर करना, कांपना शुरू हो जाती है। लेकिन तुम्हें क्या मिल गई, तुम्हें मिल गई हीट, तो तुम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज तोड़ोगे। अब वो ज्यादा ग्लूकोज तोड़ने के लिए तुम्हें दो चीजें इंक्रीज करनी पड़ती हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में। यू नीड टू इंक्रीज, मेरे जुमले याद रखना, तुम्हें दो चीजें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। यू नीड टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का टूटना एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ग्लूकोज के टूटने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है वेंटिलेशन से, सांस लेने से, ब्रीदिंग से, तो तुम्हें वेंटिलेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सांस लेने का अमल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और वो ज्यादा शिवरिंग करवाएगा, दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन शिवरिंग thermogenesis, you need to be much more specific. यहाँ पर कहानी उल्टी चलेगी, यहाँ पर जो पहले पढ़ी थी टॉपिक्स उसी हिसाब से कहानी उल्टी चलेगी। नो स्वेट प्रोडक्शन, अरे भाई सर्दी में पसीने थोड़ी आते। नो स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, यहाँ पर इरेक्शन ऑफ हेयर हो जाएगा, बॉडी हेयर, यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है बॉडी फैट,
कहां पर, किस जगह पे, एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यू कहां होता है, जस्ट बीनीथ द स्किन. यहां पर आपके पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो स्ट्रक्चर बड़ा था, वेसल का जो डायमीटर बड़ा था, वो हो जाएगा छोटा. So that's how you're working over here. That is the process of working for thermogenesis. ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. और ये आ गया क्या, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. लेट मी जस्ट लाइक रिवाइज द होल थिंग इन वन पर्टिकुलर पिक्चर. तो ये आपके पास आ गया थर्मो रेगुलेशन. आई होप कि समझ में आया होगा. और अगर इसके हवाले से कोई भी क्योरीज हैं, यू गाइस कैन लाइक सिंपली, मैं तुम लोग को भी बताया था कि भाई प्लीज मेंशन कर देना. अच्छा, और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, प्लीज डू मी अ फेवर कि अपने और दोस्तों को ये प्लीज लाइक जस्ट एज अ gesture of favor, you guys can like share this thing to your friends so that I must be having more followers. Okay, thank you, Allah Hafiz.